So, very good morning. We were doing question answers. Yes. Let's discuss the next question. Yes. First question सबको learn हो गया? Yes. What about the second question? Second question climate के 5 points कहीं कोई से भी climate के लिख लो. आपकी बुक में climate लिखा हुआ है ना? Yes. तो climate में कोई भी 5 points you are to learn. Who will tell? चलो आ जाओ श्रीषा. Come here and speak any 5 points of climate. Okay, बुक देख के नहीं, बुक बंद करके. लर्न करने के लिए दिए थे कल मैंने. Anyone who can tell about any 5 points of climate? It's so simple. It is severely cold, है ना? कौन बता सकते? हाँ जी, आ जाओ. Come here. Remove your mask and speak. Greenland is in the frigid zone, so it is extremely cold throughout the year. Very good. 80%. It is extremely cold throughout the year. Second. 80% of its land is covered with snow. Yes. Okay. The average temperature of summers here is -5 degree, and in cold it decreases to -23 degrees Celsius. In winters. In winter. हाँ जी, good. Throughout the year, its sky is it is cold and very dark. हाँ जी. Summers are very short. Winters are very long. है ना? आप ऐसे लिख सकते हो ना? Okay, good. Well tried. Okay, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं. Anyone else? कोई इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो? इसके अलावा ये पालिका. ये तो लोकेशन होगी ना बेटे. ये तो लोकेशन है, मैंने क्लाइमेट पूछा है. हाँ जी. ओके. अनीश, ये तो उसने बोल दिया. कोई और पॉइंट जो इसने नहीं बोला? निबंध. Okay, associated with cold and darkness. Anyone else? Its temperature is so cold that the snow here is more than the Iceland. हो सकता है, but not appropriate. Relevant होना चाहिए. हाँ जी. Summers are short and cool. ये हो चुका है. हाँ जी. ये भी हो चुका है. सुना करो ना पहले. इसके अलावा सृष्टि. हाँ, days are dark continuously for many months, है ना? Yes. हाँ? There is no sunlight for many months. Good. Yes. It is bright and cold. Bright to me. It is dark. Okay, next is. चले next. ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? Yes. So बेटे, I am again reminding you, you need to learn the answers from the book only. No need to write in the notebooks. बुक से ही लर्न करो. क्लाइमेट वाला जो पॉइंट है, क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स यू आर टू लर्न. इफ पेपर में कुछ पूछा जाता है क्लाइमेट के बारे में, यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. एनी 5 पॉइंट्स. 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का तो शॉर्ट कर लो उसको. क्लियर? सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इग्लू. इसके 2 पार्ट्स है. व्हाट इज एन इग्लू? हाउ इज इट मेड? एनीवन? यस मौलिक. Slow. Come here. Igloo is An igloo. I से start होता है ना igloo. An igloo
An igloo is house of ice, Snow, house of snow. snow and ice, and it is made with the ice Slabs. slabs. Okay. ठीक है. But not sufficient. अगर 3 marks का भी आता है तो इतना सा लिखोगे तो you will not get marks, है ना? Any other point from the book? चले mark करें. It is given on page number 45. यहाँ से पढ़ के बताओ जरा. Yes, Pratiksha. And igloo are built with slabs of ice. They are Dome shape. dome-shaped and have a single opening for smoke and for air to pass. To make the house warm, the floor is covered with skins of animals and fur. Very good. तो सबसे पहले ये वाला सारा पैराग्राफ ही आ जाएगा. The Inuits living in the extreme north live in snow houses known as igloos. या ऐसे भी बोल सकते हो, igloos are the snow houses in which Inuits live. है ना, ऐसे भी लिख सकते हो. Igloos are the snow houses in which Inuits live. They are built with slabs of ice. They are dome shaped and have a single opening for smoke and hot air to pass. To make the house warm, the floor is covered with the skins of animals and fur. Clear? चले लर्न करें इसको. लर्न करें और जिसको आ जाता है वो सुनाए मेरे को. यहीं पे लर्न करना है हमने. ओके. लर्निंग क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग. वर्डिंग कुछ भी हो सकती है. सबसे पहले तो स्नो हाउस, फिर बताना ये बने कैसे हैं. नंबर 1 स्लैब्स ऑफ आइस. नंबर 2 उसकी शेप कैसी है, फिर उसमें ओपनिंग्स कितनी है, एंड इसके फ्लोर को कैसे कवर किया जाता है. बस हो गया लर्न. एनीवन एल्स? नहीं, पॉइंट्स में लिखा करो बच्चे. पॉइंट्स में जब लिखते हो ना तो आपको इजी हो जाता है लर्न करना, और मेन पॉइंट से ही टीचर को पता चल जाता है कि आपको कितना आता है. ठीक है. तो इट इज रिकमेंडेड 10th तक आपको रिकमेंड किया जाएगा कि यू मस्ट राइट इन पॉइंट्स. ओके. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट बोलो. गुड नमन. नीचे करके. Slabs of ice. Okay. Igloos are made of slabs of ice. Ankita. Very good. Igloos are the snow house. Palika. The floor of igloos are covered with the skin of animals and fur. Floors of the igloos are covered with the skin of animals and fur. Misbah. They are dome-shaped Very good. and have a single opening for hot air to pass. Very good. और पॉइंट रह गया कोई? हाँ जी, क्या? To stay in the snow house known as igloo. ओके. इसके अलावा हो गया सब बच्चों को? वेरी गुड. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द एनिमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड. हाउ आर देयर एनिमल्स यूजफुल टू देम. एनिमल्स है तो इसमें आप क्या लिखोगे? वाइल्ड लाइफ लिखोगे कि वेजिटेशन? एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ वाला पैराग्राफ, इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो आप. चले कौन बोलेगा फर्स्ट पॉइंट? The animals living in the Greenland are फाउंड इन द ग्रीनलैंड. found in the Greenland are reindeer, polar bear, sea, walrus, etc. ओके. एनी 5 एनिमल्स यू शुड राइट. सेकंड पॉइंट. They burn their skin as fuel. ओके. पर जिंदा एनिमल्स के पहले यूजफुल यूजेस बताओ ना. वो तो है ना, मर करके उनकी स्किन को ऐसे यूज करते हैं.
हाँ जी भाविका. Okay, huskies are used for hunting and pulling their sledges. Okay, any other point, Pratiksha? Huskies are the domestic animals. Hanji, yes. The bones of animals are used for fishing. Fishing. To make Niban. skin of seals to make their clothes. Okay, good. Skin से वो कपड़े बनाते हैं. Any other point? आपने ना वैसे बच्चे ये तो हो गया स्किन ऐसे जो एनिमल्स जिंदा एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को थोड़े ना वो यूज कर सकते हैं, है ना. तो आपने पहले उनके यूजेस बताने हैं, एनिमल्स कैसे उनके लिए यूजफुल है. तो इसमें बेटे सबसे पहले तो आपको पहले एनिमल्स लिखने हैं कि कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पहले आप क्या लिखोगे, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे. फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे कि उनके यूजेस क्या है एज अ लिविंग क्रिएचर. ये नहीं मरने के बाद तो काफी यूजेस होंगे, आपने उनके यूजेस लिखने हैं जब वो जिंदा है, एनिमल जिंदा है. स्किन उनकी नहीं उतर सकती जब तक वो जिंदा है ना. तो आपने वो यूजेस लिखने हैं जो एनिमल्स उनके साथ रहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं हस्कीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स and mainly used in hunting and pulling the sledges. ठीक है? Is it clear? हाँ जी, और पॉइंट. There is a tradition of ice fishing and annual dog ऐसे बेटे डॉग स्लेज रेसेस जो है, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है, ये उसका यूज लिख सकते हो. हाँ, फॉर एंटरटेनमेंट. दे हैव डॉग स्लेज रेसेस फॉर देयर एंटरटेनमेंट. ये हो सकता है. हाँ जी, एनीवन एल्स. हाँ जी, हाँ ये तो हो सकता है, हो गया. हाँ जी अंकिता. ये भी हो गया. Sledges are pulled by huskies or the reindeers and it is the main mode of transportation. Any other point? इसके अलावा हाँ जी बोलो. बेटे ये एनिमल का यूज थोड़े ना हुआ, ये तो एनिमल के पास फर होती है. हाँ, एनिमल्स हैव फर which protects them from the severe cold. तो ये एनिमल का यूज नहीं होगा ना, ये तो उसकी क्वालिटी फीचर हो गया. चले नेक्स्ट है. Yes, which point? The seals make hole in the snow for their breathing. इसका ह्यूमन बींग्स को क्या यूज है ना. नहीं, ये नहीं होगा. चले हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है. इकोनॉमी, गुड. इकोनॉमी ऑफ ग्रीनलैंड is based on the export of fish, है ना. ये हो सकता है बेटे, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. इफ ब्रीफ क्वेश्चन है तो यू आर टू बी ब्रीफ. इफ दे आर आस्किंग इन डिटेल देन यू आर टू राइट इन डिटेल, है ना. पहले आपको क्वेश्चन की फॉर्म पता होनी चाहिए. लॉन्ग आंसर पूछा है देन सर्टेनली यू आर टू राइट मोर देन 5. इफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इफ वन वर्ड है तो फिर वन वर्ड में क्या लिखोगे. दे आर यूज्ड टू पुल द स्लेजेस,
है ना? हाँ, वन वर्ड में तो यही लिखोगे ना आप. तो it depends upon the type of question. Objective है तो you are to write in one sentence only. If one word is there, even then you are to write one word, है ना? Short है तो 3 points. This चले next है. Describe the vegetation of Greenland. Vegetation means the things grown there. कौन कौन सी चीजें ग्रो करती है? जितना भी वेजिटेशन का है ना आपकी बुक में, उसमें से कुछ भी लिख सकते हो. कौन आकर के यस निबंध कम हियर. स्टूडेंट सिटिंग एट होम, आपको पता चल रहा है? मार्क कर रहे हो? गुड. चलें, हाँ जी बोलो बच्चे यहाँ से. हाँ, वेजिटेशन वैसे आता है. During the short summer season, when the ice melts, small plants like mosses and lichen, grasses and bushes grow on the rocks. Very good. हाँ जी. These plants provide fodder for animals. Some flowers also bloom for a very short period. Yes, ये भी हो सकता है. अगर 3 पॉइंट्स का शॉर्ट आंसर आ गया, ये भी हो सकता है. उसके साथ करंट्स वाली लाइन भी लिख सकते हो, है ना? करंट्स, हाँ जी. Some fruits like currants, cranberries and blueberries also grow in the coastal areas. यहाँ तक आपने लिखना है. Is it clear? Hardly any trees कब लिखोगे? जब लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में आएगा. जब डिटेल में आएगा तब आप लिख सकते हो there are hardly any trees. क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो बेटे. हाँ, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? What are the main occupation of the people of Greenland? ये थोड़ा सा ना थोड़ा मतलब कुछ पार्ट हमें पहले से लेने पड़ेगा ऑक्यूपेशन से, कुछ और. तो ये मैं बेटर है आपको क्लास में नोटबुक पे करवाऊंगी. टुमारो वी विल डू द क्वेश्चंस व्हिच वी आर टू राइट ऑन द नोटबुक. क्लियर? हम 6, 7 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और नेक्स्ट पेज पे 8 क्वेश्चन. नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है ना 8, ये हम नोटबुक पे कर लेंगे. अभी आपका होमवर्क क्या है? यू आर टू लर्न क्वेश्चन नंबर 1 to 5. मैंने लर्निंग के लिए कहा है बेटा. यू आर टू लर्न ओनली, नॉट टू राइट इन द नोटबुक. लर्न इट फ्रॉम द बुक. You can mark here in the book. You can directly learn it, but no need to write in the notebooks. Is that clear? Any doubt, students sitting at home? कोई doubt है? Angel, you have raised your hand. Okay, unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम, जो ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ ग्रीनलैंड, ये हमने पॉइंट्स में लिखना है पैराग्राफ में? It is, I will recommend you to write all the answers in points because it is easy for you to learn and same way it is easy for us to check. Okay? Any other doubt? Students sitting at home, if you have any doubt. Okay then, that's all for today. Thank you very much.